Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, welcome to lecture number 9, and this lecture is about business analysis, and we had started the first knowledge area of business analysis, that is business analysis planning and monitoring. The other day we had talked on this very topic, but now we are going to talk in good detail on this thing, the second part. We had talked on 3 tasks on other day, and now we are going to talk on remaining 3 in this. But before we start with this particular session, let's have a brief summary of the lecture we had the other day. In previous lecture, we had talked about what is business analysis, planning and monitoring. And we had then talked about business analysis, planning and monitoring input-output diagram. It is wrongly written over there, that is a diagram. And then we had talked about 6 tasks of business analysis, planning and monitoring. We had discussed about 3 of them in detail. We had talked on plan business analysis approach, then conduct stakeholder analysis, and then plan business analysis activities. And every task was further divided into these 6 things for discussion. We had talked about the description of that particular task, inputs of that task, and the elements of that task, and the techniques which we employ, and then stakeholders which are involved in that particular task, and outputs. Remember, we had also talked that the outputs of one task may become the input of other tasks, and we use techniques. We are going to talk on those techniques in good detail when we will be done with knowledge areas of business analysis. हम इसके ऊपर proper sessions करेंगे. उसके बाद जो हमने last time बात की थी कि elements और कैसे outputs बनते हैं, एक पूरा process हमने देखा था. So let's start with today's lecture. So as we do know that business analysis, planning and monitoring, this slide has already been shown. So this knowledge area describes the work involved in monitoring and reporting on work performed to ensure that the business analysis effort produces the expected outcomes. If these outcomes do not occur, the business analyst must take corrective actions to meet stakeholder expectations. And these are 6 tasks which we had talked the other day, and these are few inputs and we get outputs. So like for business analysis approach, so business need is one input, then expert judgment is one input, and organization process is set relevant to business analysis approach will be used. And when we are talking of conduct stakeholder, so business need will be there, and then enterprise architecture will be there, and organization process asset will be there. So this is and we will have, like for first task, we will have business analysis approach is output, and roles and responsibilities is list and roles and responsibility of stakeholders is the output of second task. So in this fashion we do analyze the knowledge area. Till now we had discussed about 3 tasks, and that is plan business analysis approach, and then second task is conduct stakeholder analysis, and the third task is plan business analysis activities, and now we are going to talk on the fourth task, that is plan business analysis communication. So we are having after this task we are having plan requirements management process and manage business analysis performance.
So we start with planned business analysis communication. So planned business analysis communication, it describes the proposed structure and schedule for communications regarding business analysis activities. We need to carry out business activities now. So we need to structure the communication, like what may be, who is going to talk to whom, who is going to convey the documents to whom, who is going to send the emails to whom, and when, and what mode will be used, what method will be used, communication method or mode, and what will be the timing, what will be the frequency. All these are actually planned in this task. Record and organize the activities to provide a basis for setting expectations for business analysis work and meetings, walkthroughs, and other communications. So we need to organize all the activities जो कि हमारी expectation जो है हमारे stakeholders की business analysis work के हवाले से उनको वो fulfill कर सकें. Planning a business analysis communication includes determining how best to receive, distribute, access, update, and escalate information from project stakeholders, and determining how best to communicate with each stakeholder. So we are having one stakeholder, and we are having another stakeholder. So they are communicating. So this is not only one way, this is two way. So one is actually sending, other is receiving. This is the simplest mode of communication over there. But when we are working in organization, we need to understand, well, communication is very fine, but this is not end of the world. We need to improve on that. We need to capitalize on that. What is the best way to receive information? By best, I mean which is less costly, which is effective, which is optimum, which is not time consuming, and which actually serves the purpose of, and hence we can have better communication, less miscommunication, misdirected communication, so we can actually curtail such things. Then as distribution, what is the mode of distribution? Few people like emails, few other like hard papers, letters, memos. The other they don't like letters to be received, so they like if you can call them up. Access, what is how to access that information which has been archived or which has been placed somewhere, some central thing or stuff like that. And जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई उसको आपने अपडेट करते रहना है. ये नहीं कि आप किसी एक ऐसे लेटर का हवाला दे दें जिसके आगे 10 लेटर्स फर्दर इशू हो चुके हों, तो वो मीनिंगलेस हो चुका होगा वो लेटर अगर हम उस लेटर की बेस पे कोई एक्शन करते हैं. एंड एस्केलेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स. एंड फिर हम ये देखते हैं कि सबसे बेहतरीन तरीका जो है बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद ईच स्टेक होल्डर इज व्हाट. रिक्वायरमेंट्स कैन बी प्रेजेंटेड इन वेरियस फॉर्मेट्स. This task describes the work required to decide which format or formats are appropriate for particular initiative and its stakeholders. So अगर एक stakeholder है उसकी requirement है जी कि मुझे जो चीज़ present की जाए वो drawing की शक्ल में हो, तो हम उसको drawing दिखाएंगे. दूसरे हैं वो कहते हैं मुझे 3D मॉडल चाहिए, हमें 3D मॉडल. चौथे हैं वो कहते हैं मुझे एक प्रोटोटाइप मॉडल चाहिए, तो हम उनके लिए फिजिकल मॉडल डेवलप करेंगे. सो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो किस तरह उसको देखना चाहते हैं, उसी हिसाब से हम उसको प्लान करेंगे. सो प्लानिंग बिजनेस एनालिसिस कम्युनिकेशन इंक्लूड्स डिटरमाइनिंग हाउ बेस्ट टू रिसीव, डिस्ट्रीब्यूट, access, update, and escalate information from project stakeholders, and determining how best to communicate with each stakeholder. ये हमने बात कर ली. उसके बाद consideration for business analysis communications plan include what needs to be communicated. हमें क्या communicate करना है. What is the appropriate delivery method. email है, phone है, memos हैं या special messenger है.
हु इज अप्रोप्रिएट ऑडियंस, किस पर्सन को हमने डिलीवर करना है, किसी सीनियर लेवल को करना है, जूनियर लेवल को करना है, मीडियम लेवल का जो पर्सन है उसको करना है, एंड व्हेन द कम्युनिकेशन शुड अकर, और उसकी फ्रिक्वेंसी हमने डिवाइस करनी है। तो ये नहीं है कि सारा पूरा का पूरा पलंदा जो है वो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का बना के हम एग्जेक्टिव को भेज दें। हो सकता है उसको सिर्फ लाइक बिजनेस एनालिसिस का एक पार्ट जो है वो अप्रोच देखना चाह रहा हो कि बिजनेस एनालिसिस अप्रोच क्या है हमारे, बजाय हम पूरा का पूरा बिजनेस एनालिसिस प्लान उसको भेज दें, हम बेसिकली सिर्फ उसको एक चीज भेजेंगे। सो दिस इज ए गुड एग्जांपल। And stakeholder needs and constraints relevant to communication, ये हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि उनकी ज़रूरियात क्या हैं, उनकी लिमिटेशन क्या हैं। एक तो ये है कि हमें फिजिकल लोकेशन उनकी पता होनी चाहिए स्टेक होल्डर्स की, जो डिफरेंट लोकेशन पे हैं दुनिया में, और या सिटी में या प्रोविंस में या कंट्री में, हमें अकॉर्डिंगली उनको उसी तरह ही डील करना होता। टाइम जोन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, ये उस वक्त बड़ा मीनिंगफुल हो जाता है जब आप एक टाइम जोन में बैठे हैं और यू एक्चुअली स्टेटेड कि जी इसको मैं कॉल करूंगा, ये कॉल करूंगी, तो जब आप 3 बजे कॉल करते हैं दिन के, आपके पास वो दिन के 3 बजे हैं, हो सकता है वहां रात के 4 बजे हों और वो साहब या साहिबा सो रही हूं। सो कम्युनिकेशन अप्रोच फॉर स्टेक होल्डर्स, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विल बी रिक्वायर्ड, क्या चीज आपने सेंड करनी है, व्हाट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स विल बी एलिसिटेड, कौन सी चीजें आप उनसे इकट्ठी करेंगे, कौन सी रिक्वायरमेंट्स और कैसे करेंगे, हाउ बेस्ट टू कम्युनिकेट रिक्वायरमेंट्स, कंक्लूजन्स, पैकेजेस इंक्लूडिंग अथॉरिटी लेवल एंड टाइम एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। तो ये सारी चीजें जब आप बेसिकली कहाँ ये चीज आप कंसिडर करते हैं, वो है बिजनेस एनालिसिस कम्युनिकेशन प्लानिंग। जिस तरह के हम सारे टास्क्स की पहले हम उनको डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब करने के बाद हम उनके इनपुट्स पे बात करते हैं, और वो इनपुट्स जो हैं उनके कुछ एलिमेंट्स हम जो टास्क उसके एलिमेंट्स की बात करते हैं, और फिर हम टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, और फिर हम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं, और हम आउटपुट्स जनरेट करते हैं। तो ये एक पूरा हर टास्क के लिए एक पैट जो है वो हमारा रहेगा, पैटर्न रहेगा। So business analysis approach is one of the input, and remember this is the output of first task of this first knowledge area, that is plan business analysis approach. We need ये पहला जो हमारा टास्क था ये उसका बेसिकली आउटपुट है। So this may include standards and templates used for communication. And expectations regarding when and how communication should occur. तो हमें बेसिकली ये सारी की सारी चीजें हमारे अपने बिजनेस एनालिसिस अप्रोच से मिल जाएगी। उसके बाद दूसरी चीज है बिजनेस एनालिसिस प्लान। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ आवर थर्ड टास्क, एंड दैट वाज प्लान बिजनेस एनालिसिस एक्टिविटीज। उसका जो आउटपुट था दैट वाज बिजनेस एनालिसिस प्लान, अब ये यहाँ इनपुट है। सो इट विल गिव यू व्हेन वर्क विल बी परफॉर्म्ड एंड डिलीवरेबल्स दैट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड विच नीड टू बी कम्युनिकेटेड। तो यहाँ से आपको उस चीज का पता चल जाएगा। उसके बाद ओपीएस के ऊपर हमने बात की कि ये बेसिकली सारे के सारे ओपीएस हैं, उससे जो रेलेवेंट है उसका यहाँ जिक्र है। सो OPS may include a defined set of template for use in business analysis communication, including presentation formats, requirements documentation templates and others. और उसके बाद stakeholder list, roles and responsibilities. Again, this is the output of second task, and that is conduct stakeholder analysis. और अब यहाँ input है. So this is used to identify the stakeholders who will require information regarding business analysis work, determine when information needs to be provided, and how a stakeholder is expected to use that information. तो ये basically कुछ inputs हैं जो कि plan business analysis communication में use होंगे। अब this is the whole story of this task. So we are having a business analysis approach, which is output of
plan business analysis approach, and then business analysis plan. This is the output of the third task, that is plan business analysis activities, and then this is the second task output, that is stakeholder list and roles and responsibility. The second task was conduct stakeholder analysis, and then we are using OPAs. So we are doing plan business analysis communication, and we are having elements of that, and then we apply techniques, and what we get business analysis communication plan. और जो communication plan है ये कहाँ use होगा, ये होगा preparation of requirements, prepare requirements packages and communication requirements, जो कि हमारे तीसरे knowledge area के processes tasks हैं. Elements, जब हम बिजनेस एनालिसिस कम्युनिकेशन को प्लान करने जा रहे हैं तो उसके जो एलिमेंट्स हमें देखने हैं वो ये देखने कि जोग्राफिया क्या है, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो किस लोकेलिटी पे हैं. The communication needed for a team that is co-located will be different from communication required for a project with geographically dispersed stakeholders. तो एक तो वो हैं जो एक बिल्डिंग के अंदर बैठे काम कर रहे हैं, और एक वो हैं जो डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट्स में या कंट्रीज में या कॉन्टिनेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं. तो उनके साथ जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी कम्युनिकेशन के हवाले से वो डिफरेंट होंगी. Culture is very, very important, and cultural diversity should also be taken into account when planning communication. In addition to the obvious language barriers, there may be more subtle differences that should be considered in the plan, including relationship to the time. बहुत सारे लोगों में, बहुत सारी दुनिया के ऐसी अक़वाम है जिनके अंदर टाइम का मतलब एंड ऑफ द वर्ल्ड है, वो बिल्कुल फिक्स्ड हैं, वो उसके ऊपर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करते. जबकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नज़दीक टाइम सिर्फ और सिर्फ एक माइलस्टोन है, जो कि अगर हम अचीव करेंगे तो हमारे बेनिफिट्स मैक्सिमम हो जाएंगे, इसके अलावा उनकी इतनी ज़्यादा रिजिडिटी नहीं है. इसके बाद टास्क कंप्लीशन के ऊपर क्या रिलेशनशिप है. कुछ लोगों के लिए टास्क कंप्लीशन जो है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कुछ के लिए टास्क कंप्लीशन इज़ वेरी ऑब्वियस थिंग और वो उसके बाद अगला काम करना चाहिए. रिलेशनशिप टू द कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ लोगों, कुछ सोसाइटीज़ या कुछ कल्चर्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बेसिकली लॉ ऑफ जो लेटर्स हैं, जो वर्ड्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ के नज़दीक जो है वो लॉ की स्पिरिट कुछ कल्चर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कहते हैं कि स्पिरिट ऑफ लॉ इज़ दिस एंड दे फॉलो दैट, राइट. लेकिन कुछ जो हैं वो अल्फाज के ऊपर चलते हैं कि जी लिखा हुआ ये है, हम इसको फॉलो करेंगे. आपको अप्रीहेंड करना है कि आपका जो जिस लोकेशन के ऊपर आप बिजनेस एनालिसिस कम्युनिकेशन प्लान कर रहे हैं उनकी क्या कल्चरल रिक्वायरमेंट है. रिलेशनशिप टू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल अथॉरिटी, जिस तरह डिफरेंट लोगों का जो बिहेवियर होता है अथॉरिटी के हवाले से, वो फॉर्मल और इनफॉर्मल का वो डिफरेंट कल्चर्स में वो भी वेरी करता है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, जोग्राफिया एंड देन जोग्राफी एंड कल्चर थिंग. उसके बाद जो दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोजेक्ट टाइप. सो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स विल नेसेसिटेट डिफरेंट डिलीवरेबल्स, ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है. एंड द एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन दैट इज नीडेड इन रिक्वायरमेंट्स पैकेज विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट. छोटा प्रोजेक्ट, थोड़े डिलीवरेबल्स और डॉक्यूमेंटेशन वेरी क्लियर और बड़ी नीट और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड. बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत ह्यूज डॉक्यूमेंटेशन, और जो रिक्वायरमेंट पैकेजेस की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कम्प्लेक्स. So some examples are a new customized in-house software development project. उसके बाद upgrading the technology or infrastructure of a current system, change in business process or new data for an existing application, purchase of a software package, short focused agile style iterations of software development. तो ये सारी examples जो हैं basically बता रही हैं कि कैसे आपके प्रोजेक्ट टाइप वो जो डिक्टेट करता है कि आपने जो कम्युनिकेशन प्लान करनी है बिजनेस एनालिसिस की, वो यहाँ से फिर डिक्टेट होंगी. कम्युनिकेशन फ्रिक्वेंसी, इसके ऊपर हमने बात की कि जब हम स्टेक होल्डर की बात कर लेते हैं और हम ये बता देते हैं कि किस स्टेक होल्डर को किस तरीके से आपने अटेंड करना है, कितनी इन्फॉर्मेशन बेचनी है, इसी तरह फिर ये देखना है कि कब कब बेचनी है.
ना तो ज़्यादा होनी चाहिए फ्रिक्वेंसी और ना ही उस डिज़ायर्ड से कम होनी चाहिए। कम्युनिकेशन फॉर्मेलिटी प्लानिंग कम्युनिकेशंस रिक्वायर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी दैट इज नीडेड। जब आप लेटर लिख रहे हैं एक टॉप मैनेजर को जो कि हायर सीनियर लेवल है उसको जो आप लिखते हैं और जो अपने टीममेट को लिखते हैं, दोनों की लैंग्वेज में थोड़ा सा फ़र्क होता और वो आपको देख रहे हैं कि वो रहना चाहिए। बिजनेस एनालिसिस कम्युनिकेशन की टेक्निक्स ऑफ टास्क, प्रिपेयर रिक्वायरमेंट्स पैकेजेस एंड कम्युनिकेट रिक्वायरमेंट्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि हम आगे पढ़ेंगे रेलिवेंट नॉलेज एरियाज के अंदर, तो फिर हम इनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इन टेक्निक्स के अलावा जो इन 3 टास्क्स के अंदर आएंगी, हमें स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रूज जो हैं वो कैरी करने होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अप्रोचेस टू रिक्वायरमेंट्स कम्युनिकेशन, टाइम टू कंडक्ट ईच वॉक थ्रू एंड एड्रेस द इश्यूज raised during walkthrough must be included in the plan. Stakeholders. All the stakeholders which are listed over there may be consulted for reviews and approvals. इसमें से कुछ तो कम्युनिकेशन जो हमने प्लान बनाया है उसकी कुछ अप्रूवल देंगे, कुछ जो है उसको रिव्यू करेंगे। सो कस्टमर भी हो सकते हैं, सप्लायर्स, डोमेन, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एंड यूजर्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशनल सपोर्ट, project manager, tester, and sponsor. So these are the people who actually can have input for reviews and approvals. And hence we will have an output, and that is business analysis communication plan. So it describes how, कैसे, when, कब, and why, क्यों the business analyst will work directly with stakeholders. Components can include the stakeholder communication requirements for business analysis activities, format, content, medium level of detail, ये सारा हमारा इसका हिस्सा होगा। Responsibility for collecting, distributing, accessing and updating information, ये भी बेसिकली इसी प्लान का हिस्सा होगा। तो बेसिकली ये सारे स्टेक होल्डर्स फिर उस जो प्रोटोकॉल है एक कम्युनिकेशन का उसको फॉलो करेंगे और वो प्रोटोकॉल डिफाइन होगा बिजनेस एनालिसिस कम्युनिकेशन प्लान के तहत, जो कि हमारे चौथे टास्क का आउटपुट है। नाउ वी विल प्रोसीड टू फिफ्थ टास्क ऑफ बिजनेस एनालिसिस प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग। तो पहला जो हमने किया, ये 4 बेसिकली हमने 4 टास्क कंप्लीट कर लिए। प्लान बिजनेस एनालिसिस अप्रोच एंड कंडक्ट स्टेक होल्डर एनालिसिस प्लान बिजनेस एनालिसिस एक्टिविटीज, जिसका आउटपुट है बिजनेस एनालिसिस मैनेजमेंट प्लान। And then plan business analysis communication, we have business analysis communication plan, and now we are focusing on plan requirements management process. There is 6th process, that is manage business analysis performance. We are going to discuss this as well, but we will focus on plan requirements management process for now. So it defines the process that will be used to approve requirements for implementation and manage changes to the solutions or requirements scope. So what we need to do is requirements, approving requirements and for implementation, and manage changes to the solution or requirement scope. 2 चीजें हैं जिसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं। एक तो यह है कि हमारा जो सोल्यूशन है हम उसको वैलिडेट करेंगे, उसको देखेंगे कि वो ठीक परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा तो हम उसके करेक्टिव एक्शंस अप्लाई करेंगे, अप्रूव्ड ऑब्वियसली, वो अप्रूव्ड करेक्टिव एक्शंस जो होंगे। तो वी आर एक्चुअली मैनेजिंग द चेंजेस, एंड देन देयर मे बी चेंजेस इन रिक्वायरमेंट स्कोप्स, जिसके बेस के ऊपर हमारी चेंजेस जो हैं वो वारंट कर सकती हैं, और चेंज कंट्रोल हम पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए उनको मैनेज करेंगे। सो ये जो प्रोसेस है रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्रोसेस, ये बेसिकली वो पूरा मैकेनिज्म देता है कि कैसे आपने वो रिक्वायरमेंट्स जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो अप्रूव करना है, और कैसे आपने वो जो चेंजेस आ रही हैं उनको कैसे आपने एड्रेस करना।
This task determines the appropriate requirements management process for a particular initiative. It includes determining the process for requirements change, which stakeholders need to approve change, who will be consulted or informed of changes, and by extension, who does not need to be involved. This is very important. कि जब हम ये बात करें कि किसने चेंजेस देखनी है, किसने उनको रिव्यू करना है, किसने उसको वैलिडेट करना है और किसने उसको किसके साथ आपने कंसल्ट करना है और किसने उसको अप्रूव करना है, तो आप और अप्रूव करने के बाद किसको आपने इन्फॉर्म करना है। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि किसको आपने इन्वॉल्व नहीं करना, ये भी इसी प्रोसेस के थ्रू हमें पता चलेगा। So this task also include assessing the need for requirements traceability and determining which requirements attributes will be captured. तो यहाँ दो चीजें आई हैं, requirements attributes and requirements traceability. Now these are very important. We will talk on these two in detail. Inputs. अब जो इसके इनपुट हैं एक तो है बिजनेस एनालिसिस अप्रोच, that is output of first task of this knowledge area, business analysis planning and monitoring. जो हमारा पहला knowledge area इसका जो पहला task था that was plan business analysis approach, उसका output है। अब ये यहाँ input बन गया। The selected approach may include a definition of appropriate requirements management process. उसके बाद दूसरा जो हमारा जो इनपुट है दैट इज बिजनेस एनालिसिस प्लान। सो बिजनेस एनालिसिस प्लान इज आउटपुट ऑफ थर्ड प्रोसेस जो था हमारा थर्ड टास्क था जो हमारा इस नॉलेज एरिया का प्लान बिजनेस एनालिसिस एक्टिविटीज एंड द बिजनेस एनालिसिस प्लान डिफाइन विच डिलीवरेबल्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड व्हेन deliverables cannot be managed until they are created. So ये बड़ा important है। जब हम when की बात करते हैं तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जब deliverables को हम उस वक्त तक मैनेज नहीं कर सकते हैं, जो कि हमारा requirements management का एक बड़ी एसेंस है, जब तक हम उन्हें क्रिएट नहीं कर लेते। उसके बाद OPS है, Organizational Process Assets, Studied Templates और Processes for Requirements Management within organization may exist. अगर नहीं है तो वो खुद से क्रिएट किए जा सकते हैं, और अगर वैसे तो बिल्कुल ऐसा है होता नहीं कि बिल्कुल ना हो, लेकिन कुछ रॉ फॉर्म में होंगे। अगर कुछ दूसरे स्टेक होल्डर्स कर रहे हैं आप उनसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सो द बिजनेस एनालिस्ट मस्ट बी नॉलेजेबल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस अप्रोच टू रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन as it will greatly influence the process steps, tasks and deliverables required or expected during requirements planning and monitoring activities. अब ये इसकी पूरी जो टास्क है उसकी एक समरी है। वी आर हैविंग बिजनेस एनालिसिस अप्रोच दैट इज आउटपुट ऑफ आवर फर्स्ट टास्क, देन बिजनेस एनालिसिस प्लान द आउटपुट ऑफ थर्ड task and organizational process assets, and we need to plan requirements management process. What we get after understanding the elements and after applying techniques, requirements management plan. Now this is very important document, and this task, this output will be used in further tasks. The one which is upcoming task: manage business analysis performance, conduct elicitation activity, manage solution scope and requirements, and manage requirements traceability, prioritize requirements. So this is very important output which is being used in other tasks as well. Now let's talk about the few elements of plan requirements management process. So repository. A requirements repository is method of storing requirements, including those under development, those under review and approved requirements. अब हमें क्या करना है कि हमें बेसिकली एक ऐसे स्टोर की ज़रूरत है जिसके अंदर हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को रख सकें, जो कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी रिक्वायरमेंट्स जो कि अंडर डेवलपमेंट हैं, कुछ ऐसी होंगी जो रिव्यू के अंडर रिव्यू हैं, और कुछ ऐसी हैं जो अप्रूव्ड हो चुकी हैं। तो हमें तीनों तरह की रिक्वायरमेंट्स को बेसिकली एक जगह रखना है ताकि वो हमें उनकी प्रोग्रेस के ऊपर पता चलता रहे।
उसके बाद एक और चीज़ है ट्रेसेबिलिटी. दिस डिटरमिन्स whether and how to trace requirements based on the complexity of the domain. The number of views of requirements that will be produced, potential impacts from risk, and an understanding of the cost and benefits involved. ये सारी की सारी चीज़ें हम जब डिटरमिन करते हैं तो बेसिकली ये ट्रेसेबिलिटी में आता है. This is very important. We are going to talk on that in good detail in upcoming sessions as well, in relevant sessions. And the third thing which is important, that is change management. आप कोई भी काम करते हैं, आप उसको एक प्लान तरीके से करते हैं. आप समझते हैं कि ये प्लान है, हम ये काम करेंगे और उसका ये रिजल्ट निकलेगा, बट वो उस तरह नहीं होता क्योंकि हम फ्यूचर की बात करते हैं और फ्यूचर अनसर्टन होता है. कुछ चीज़ें आपके इख्तियार में होती हैं, कुछ चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं होती हैं. जो चीज़ें आपके इख्तियार में वो फैक्ट है, जो चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं है वो रिस्क है. वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है. लेकिन चेंज इज इनहेरेंट. प्रोजेक्ट्स के अंदर चेंज इनहेरेंट होती है. प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चेंज लाने के लिए होते हैं. प्रोजेक्ट्स से पहले और प्रोजेक्ट के बाद की जो दुनिया है वो डिफरेंट होती है. ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट होती हैं, एटलीस्ट आप डिफरेंट होते हैं. सो चेंज मैनेजमेंट is very much there. Some consideration जो हमें जब हम change management को plan कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए कि determine the process for requesting changes, determine who will authorize changes, impact analysis, plan the wording of the request. तो अब हमें मसलन एक टाइम की हमारी चेंज आ रही है तो उसके लिए एक प्रॉपर टेम्पलेट हो कि जी आपने टाइम अगर एक्सटेंशन लेनी है तो उसका ये फॉर्मेट आपने अडॉप्ट करना है, उसके ऊपर आपने इम्पैक्ट एनालिसिस करना है और फिर आपने उसको भेजना है जो कि उसको अप्रूव कर सकता. सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस. इस तरह कॉस्ट की अगर कुछ चेंज आ रही है तो उसका देखना है कि आपका क्या इम्पैक्ट है और क्या वो जो बेसिक अजम्पशंस थी प्रोजेक्ट की या आपके इनिशिएटिव की वो वायलेट नहीं हो रही हैं. तो सारा आपने करके उसके बाद ऑथराइज्ड पर्सन से आपने उसकी अप्रूवल लेनी है. उसके बाद जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है रिक्वायरमेंट्स के हवाले से वो है रिक्वायरमेंट्स के एट्रीब्यूट्स. रिक्वायरमेंट्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रिक्वायरमेंट्स सच एज द सोर्स ऑफ द रिक्वायरमेंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड अदर मैटर डाटा. सम कॉमनली यूज्ड रिक्वायरमेंट्स एट्रीब्यूट इंक्लूड एब्सोल्यूट रेफरेंस. आप सिंपल क्या अपनी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर नंबरिंग लगा सकते हैं. आप उनको कह सकते हैं कुछ कैपिटल लेटर लगा सकते हैं, कुछ रेफरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं. ऑथर ऑफ द रिक्वायरमेंट कि जी ये एक साहब ने लिखी हुई, ये उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये एक्स की रिक्वायरमेंट है, ये वाई की रिक्वायरमेंट्स हैं. कम्प्लेक्सिटी, आप कम्प्लेक्सिटी के ऊपर भी उनको देख सकते हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स कम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ जो है सिंपल हैं. ओनरशिप, ये किसकी रिक्वायरमेंट है, ये एक्स की रिक्वायरमेंट है, ये वाई की रिक्वायरमेंट्स हैं. प्रायोरिटी, हमारी जो एक्स रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी प्रायोरिटी हाई है, जो हमारी वाई रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी प्रायोरिटी लो है. रिस्क्स, हमारी रिक्वायरमेंट्स जो ए हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा रिस्क्स हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स बी हैं उनके साथ कम रिस्क्स हैं. सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट के लाइक ये हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो जनरेट हुई हैं, हम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट की, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स जनरेट हुई हैं. जो हम रोड के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी, कितने वो स्टेबल हैं. स्टेटस, वो इस वक्त रिव्यू में हैं, वो अंडर डेवलपमेंट हैं, वो अप्रूवल हो चुकी है. और अर्जेंसी, कि कौन सी चीज़ हमें जल्दी करनी है, ये रिक्वायरमेंट्स हमें जल्दी करनी है, ये हमें. सो ये काफ़ी सारे इनके एट्रीब्यूट्स हैं जो रिक्वायरमेंट्स के, जिसको आपने देखना होता है जब आप प्लान रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्रोसेस कर रहे हैं. एंड उसके बाद जो भी आपने एलिमेंट्स अभी देखे, इसके अलावा एक एलिमेंट है टेलरिंग द रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्रोसेस. ये ज़रूरी नहीं कि आप हर दफ़ा एक नए तरीके से ये प्रोसेस करें, बल्कि आप रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट को जो प्रोसेस है उसको टेलर कर सकते हैं. आपके पास ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये काम हो रहा है, अब आपने ये करना है कि आपने उस काम को लेकर के उसको इम्प्रूव करके आपने एक्सपर्ट जजमेंट और आपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ बैठ करके उसको आप टेलर कर सकते हैं. सो एन ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस may need to be tailored to meet the needs of specific initiative or project. Factors in tailoring process include
ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, अब एक प्रोजेक्ट आपने किया था उसकी आपने रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट का पूरा एक प्रोसेस है जो एसओपी भी है आपका, जो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट भी है। लेकिन अब आपने देखना है कि जो अभी आपका जो काम है उसके साथ आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का क्या चीज़ें हैं, स्टेक होल्डर प्रेफरेंसेज उसके ऊपर क्या हैं, उस प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव के ऊपर, कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोजेक्ट फेज और प्रोडक्ट वो क्या, उसकी क्या लेवल है, ऑर्गेनाइजेशनल मैच्योरिटी कितनी है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे उसके बाद जाकर के आप फिर बात कर सकते हैं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्रोसेस है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो ये एक एलिमेंट उनमें आ जाता है और उसके बाद फिर आप प्रॉपर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं। टेक्निक्स जो हम इसमें यूज करते हैं वो हैं डिसीजन एनालिसिस, पहली एक टेक्निक है, कैन बी यूज टू असेस द पॉसिबल वैल्यू डिलीवर बाय अ चेंज एंड असेस एरियाज ऑफ अनसर्टेनिटी। प्रॉब्लम ट्रैकिंग एक दूसरी टेक्निक है, यूज टू ट्रैक पॉसिबल चेंजेस and ensure that decision is reached, and risk analysis used to identify possible risks associated with the change management process and possible risks associated with making or choosing not to make the change। अब हमारा एक रिस्क था कि हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम एक कंस्ट्रक्शन का या एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम लेते हैं, या ज़्यादा बेटर है कि हम एक सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट ले लेते हैं। ओके, हमारी एक एनजीओ है जो इससे पहले पोलियो को एरेडिकेट करने के लिए काम कर रही थी, और अब हमें एक प्रोजेक्ट मिला है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में लिटरेसी रेट बढ़ाने के ऊपर है। हमने उस एरिया में ऑलरेडी जब पोलियो वैक्सीनेशन कर रहे थे तो लोगों को एजुकेट किया था, तो हमारे पास एक छोटा सा बैकग्राउंड बैरल है कि हम वो प्रोजेक्ट जो है वो कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर जो हमें पहले ट्रेनर्स जो हमारे साथ काम कर रहे थे वो बड़े एक्सपर्ट थे और वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के थे। अब हम ये प्लान करते हैं कि हम उसी ऑर्गेनाइजेशन के वो जो ट्रेनर्स हैं उनको हायर कर लेते हैं, और हायर करके तो इस तरह वो काम अच्छे तरीके से कर लेंगे। इस सूरत हाल में हमने क्या किया, जो अपना रिस्क था हमारा वो हमने ट्रांसफर कर दिया दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन जब हम ये रिस्क ट्रांसफर करते हैं तो इसके साथ एक और रिस्क आ जाता है कि कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन वो काम करने में फेल ना हो जाए, या उसके ट्रेनर उस ऑर्गेनाइजेशन को रिजाइन करके किसी और जगह ना चले जाएं। तो ये एक रिस्क को जब हम मिटिगेट करने या ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं तो वो एक दूसरे रिस्क की शक्ल में भी सामने आ सकता है, इसको सेकेंडरी रिस्क बोलते हैं। तो हमें जब हम रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं तो ये सारी चीजें हमें देखनी है कि जो भी हम चेंज मैनेजमेंट एक हमने किया, एक सोल्यूशन हमने डिवाइस किया, तो उसके फर्दर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जब हम रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्रोसेस की डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें फिर किस किस को कंसल्ट करना चाहिए फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तो उसके लिए हमें जो सबसे पहले जो डोमेन हमारा एसएमई है उसको देखना चाहिए, उनसे डिस्कशन करनी चाहिए, वो लोग काफ़ी हमारे हेल्पफुल हो सकते हैं। हमारे एंड यूजर जो हैं वो हमें बहुत अच्छी राय दे सकते हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी हमें बेसिकली फीडबैक चाहिए होगा। जो ऑपरेशनल सपोर्ट है वो बड़ा अच्छा हमें बता सकते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर्स अब बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। टेस्टर्स और स्पॉन्सर्स जो है वो चैंपियन करते हैं प्रोजेक्ट्स को, सो ये भी बड़ी अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। सो ये स्टेक होल्डर्स हैं जो कि कंसल्ट किए जा सकते हैं फॉर प्लानिंग रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। और इस सारे जो प्रोसेस है इसकी आउटपुट क्या है, वो है रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्लान। सो आवर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान डिस्क्राइब्स the approach to be taken to structure traceability, definition of requirements, attributes to be used, जो भी हमने यूज करने हैं ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट, वो हम एक ही एट्रीब्यूट, ताकि सारे स्टेक होल्डर्स एक ही ग्रिड के ऊपर हों। रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटाइजेशन प्रोसेस, कैसे आपने एक रिक्वायरमेंट के ऊपर दूसरी रिक्वायरमेंट कैसे प्रायोरिटाइज करना है, उसका एक पूरा प्रोसेस गिवन होना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स चेंज प्रोसेस इंक्लूडिंग हाउ चेंज विल बी रिक्वेस्टेड, एनालाइज्ड,
approved and implemented. So these are few things which are actually been given in requirements management plan. And जब चेंज को कौन लेकर के आएगा, वो कैसे क्या फॉर्मेट है उसके, क्या स्टैंडर्ड है, क्या कोई टेम्पलेट है, वो टेम्पलेट है तो एक टीम मेंबर कैसे उसको फिल करेगा और वो फिल करके फिर किसको सबमिट करेगा और उसको कौन अप्रूव करेगा, और जो अप्रूव करेगा वो किसको देगा कि उसको एनालाइज करे, वो देखेगा कि क्या इसका इम्पैक्ट है और किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट है, क्या हमारी जो अजम्पशंस है जिनके ऊपर हमने इनिशिएटिव किया था वो वैलिड रहती हैं अभी भी। वो सारा करने के बाद जो है वो उसको अप्रूव कर दिया जाएगा, और जब वो अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट करने की बात, कैसे इम्प्लीमेंट वो चेंज होगी, पूरे की पूरी जो हमारी सारी डिटेल है वो बेसिकली इसमें प्लान रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्रोसेसेस के जो आउटपुट आया है रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्लान, इसके अंदर वो कवर हो गया। एंड दिस इज ऑल फॉर रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्रोसेस. We had discussed 5 tasks till now, and we are proceeding to the last task of business analysis planning and monitoring. So that is manage business analysis performance. Okay, जो हमारा business analysis है उसकी performance को हम कैसे manage करते हैं. So जब हम performance management की बात करते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो चीज़ हमने प्लान की है क्या वो वैसे ही एग्जीक्यूट हो रही है, क्या इफेक्टिवली हो रही है, क्या एफिशिएंटली हो रही है. सो दिस इज अबाउट मैनेजिंग बिजनेस एनालिसिस परफॉर्मेंस. सो टू मैनेज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एनालिसिस एक्टिविटीज टू इंश्योर दैट दे आर एग्जीक्यूटेड एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली वो हो रही होनी चाहिए. डिस्क्रिप्शन फर्स्ट जो हमारा पार्ट होता है कि हम उसको देखते हैं कि कैसे डिस्क्राइब करना. दिस टास्क कवर्स डिटरमाइनिंग विच मैट्रिसेस विल बी यूज्ड टू मेजर द वर्क परफॉर्म्ड बाय द बिजनेस एनालिस्ट. यहाँ एक चीज आई है जो मैट्रिसेस. जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जब हम किसी चीज को चेक करना चाह रहे हैं कि वो ठीक परफॉर्म कर रही है या ठीक परफॉर्म नहीं कर रही है, तो हमें फिर क्या करना है कि हमें कुछ सेट स्टैंडर्ड्स के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना है, कुछ मैट्रिसेस के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना है. तो वो जो मैट्रिसेस हैं सबसे पहले तो हमें वो डिफाइन करने होंगे. जिस तरह अगर हम क्लास की बात करें तो हम कह देते हैं कि जी 50% मार्क्स वाले जो हैं वो पास हैं, 50 से कम वाले फेल हैं. तो हमने एक बेसिकली मैट्रिक्स जो है वो हमने डिफाइन कर दी. इसी तरह बहुत सारी हम पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं, बहुत सारे मैट्रिसेस डिफाइन कर सकते हैं, और फिर जो परफॉर्मेंस है किसी भी चीज़ की उन मैट्रिसेस के ऊपर जो है वो मेजर कर सकते हैं. इसी तरह जब हम बिजनेस एनालिसिस की बात करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उसके लिए हमें मैट्रिसेस जो ऑलरेडी गिवन है उनके ऊपर हमें अपने वर्क की परफॉर्मेंस को मेजर करना. और वो जो मैट्रिसेस हैं वो कौन डिफाइन करेगा, वो बिजनेस एनालिस्ट डिफाइन करेगा. इट इंक्लूड्स हाउ टू ट्रैक, कैसे आपने परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है, असेस करना है, रिपोर्ट करना है, ऑन द क्वालिटी ऑफ द वर्क एंड टेक स्टेप्स टू करेक्ट एनी प्रॉब्लम्स दैट मे अराइज. तो सिर्फ आपने यही नहीं करना कि सिर्फ आप उसको ट्रैकिंग कर रहे हैं, उसको असेस कर रहे हैं और उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि आपने उसके करेक्टिव एक्शंस जो हैं वो भी टेकअप करने हैं ताकि वो जो प्रॉब्लम्स जो अराइज हो रहे हैं वो या तो कम हो और या बिल्कुल ही खत्म हो जाए. दिस मे फीड इनटू डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर बिजनेस एनालिसिस प्लान. जिस तरह के डिस्क्रिप्शन के बाद हम हर टास्क का करते हैं, अब हम इनपुट्स की बात करेंगे. मैनेज बिजनेस एनालिसिस परफॉर्मेंस के जो इनपुट्स हैं, बिजनेस एनालिसिस परफॉर्मेंस मैट्रिसेस, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर्स आर कैप्चर्ड, एनालाइज्ड एंड बिकम द बेसिस फॉर टेकिंग करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस. सो हम ये देखते हैं कि हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो कैसी जा रही है, हमने कितने % प्रोग्रेस अचीव कर लिया, हमने कितनी कॉस्ट सेविंग कर ली है, हमने कितना टाइम के हम ओवर द शेड्यूल जा रहे हैं या बिहाइंड शेड्यूल हैं, ये हम चीज़ बेसिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसी हिसाब से हम करेक्टिव या प्रिवेंटिव एक्शंस जो हैं वो डिवाइस करते हैं. उसके बाद बिजनेस एनालिसिस प्लान. दिस प्लान describes
deliverables, activities, tasks and estimates for all business analysis work. ये बेसिकली अभी हमें जो चीज़ें चाहिए हैं मैनेजिंग बिजनेस एनालिसिस परफॉर्मेंस के लिए, वो एक तो ये है कि हमें डिलीवरेबल्स हमारे क्या हैं, हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, कौन कौन से टास्क करने हैं, और एस्टिमेट्स फॉर ऑल बिजनेस एनालिसिस वर्क. तो अब हमारे पास ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, वो आएंगी बिजनेस एनालिसिस प्लान से. जब ये हमारी सारी चीज़ें आ गई तो हम डिलीवरेबल्स को चेक कर सकते हैं कि हमें चाहिए ये था, आ ये रहा है, जो हमारी एक्टिविटीज़ थी हमने करनी ये थी, कर ये रहे हैं, और एस्टिमेट्स टाइम के और कॉस्ट के ये थे, हम यहाँ खड़े हैं. सो conformance to these plans may be the primary metric used to judge performance. And then organizational process assets may include mandated performance matrices or expectations for business analysis works. तो ये बेसिकली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने सेट कर दी हैं, या जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमारे ऑलरेडी पहले से परफॉर्मेंस आ रही है, हम उस हिसाब से खुद को चेक कर लेते हैं. उसके बाद आ जाती है एक चीज़ रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्लान, जो कि अभी हमारा प्लान रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस का आउटपुट था. उसको अब हम यूज़ करेंगे इस प्रोसेस के अंदर, और ये है कि द रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्लान में ऑल्सो सेट एक्सपेक्टेशंस फॉर द फ्रिक्वेंसी ऑफ चेंजेस टू रिक्वायरमेंट्स एंड द वर्क इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग दैट चेंज. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनपुट्स होंगी हमारे मैनेज बिजनेस एनालिसिस परफॉर्मेंस के लिए. लेट्स हैव समरी ओवर देयर. एक चीज़ जो बेसिकली आ गई यहाँ वो है बिजनेस एनालिसिस प्लान. ये हमें चाहिए होगा रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्लान एंड बिजनेस एनालिसिस परफॉर्मेंस मैट्रिसेस, एंड वी विल कैरी आउट मैनेज बिजनेस एनालिसिस परफॉर्मेंस. और जो चीज़ें हमारे पास आएंगी वो आ जाएंगी बिजनेस एनालिसिस परफॉर्मेंस असेसमेंट और बिजनेस एनालिसिस प्रोसेस एसेट्स. सो बेसिकली दो चीज़ें, इस दो आउटपुट आ रही हैं. एक तो परफॉर्मेंस असेसमेंट है जो कि फर्दर हमारी जो प्लान बिजनेस एनालिसिस एक्टिविटीज़ थी वहाँ जाके होगा इटरेटिव प्रोसीजर के थ्रू, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स जो हैं वो अपडेट हो जाएंगे हमारे इस प्रोसेस के थ्रू. So this is briefly about input-output diagram of managed business analysis performance. अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, कि कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं हमारे बिजनेस एनालिसिस मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एनालिसिस परफॉर्मेंस के. परफॉर्मेंस मेजर्स आर यूज्ड टू सेट एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स effective business analysis work in the context of particular organization or initiative. Performance measures may be based on deliverables, due dates, matrices, or qualitative feedback from stakeholders and peers of the business analyst. And second element is performance reporting. Reports can be in written format to provide for archival and tracking, or they can be informal and verbal based on the need of the project. And then preventive and corrective actions. The business analyst should assess the performance measures to determine where problems in executing business analysis activities are occurring or opportunities for improving the business analysis process exist. तो जहाँ वो प्रॉब्लम होगा वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे. फिर हम देखेंगे कि वहाँ जो प्रॉब्लम आ रहा है क्या वो इतना हो गया है कि हमें कुछ काम करेक्टिव एक्शंस करना पड़े, कुछ रीवर्क करना पड़ जाएगा, हो सकता है कुछ हमें प्रोसेस को इम्प्रूव करना पड़ जाएगा, या प्रिवेंटिव कि हम अभी से ही अपना प्रोसेस इम्प्रूव कर लें और वहां तक की नौबत ना आएगा जहां हमें करेक्टिव एक्शन करना पड़े. याद रखें जो करेक्टिव एक्शंस होते हैं वो ज्यादा कॉस्टली होते हैं जो प्रिवेंटिव एक्शन उनकी निस्बत. बट एट टाइम्स देयर मे बी सिचुएशन जहां करेक्टिव एक्शन जो है वो इतने कॉस्टली ना हो, बट वी एक्चुअली फोकस ऑन प्रिवेंटिव थिंग्स. जो हम बिजनेस एनालिसिस परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए जो हम टेक्निक्स यूज करते हैं उसके अंदर एक टेक्निक है कि हम इंटरव्यू कर लेते हैं. हम स्टेक होल्डर्स को इंटरव्यू करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कि बिजनेस एनालिसिस की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्या समझते हैं कि कैसे एक बिजनेस एनालिस्ट को हम समझ सकते हैं. तो उसके अंदर वो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो हमें बताते हैं कि हमारी ये एक्सपेक्टेशंस हैं,
हम ये चाहते हैं, ये चीज़ें अचीव हों, हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफिल हों, रिक्वायरमेंट्स के हवाले से कोई चीज़ चेंज ऑर्डर ना आए, और जो हम चाह रहे थे वही चीज़ डिलीवर हो रही है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इंटरव्यू से एक बहुत अच्छा तरीका होते हैं। अब इंटरव्यूज़ के फिर डिफरेंट पैटर्न हो सकते हैं, वो उसको हम डिटेल में फिर बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लेसन लर्नड प्रोसेसेस, these help identify changes to the business analysis processes and deliverables that can be incorporated into future work। अब हमने एक सोल्यूशन किया बिजनेस एनालिसिस का, और उसने उस तरह परफॉर्म नहीं किया जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो जिस तरह कहा जाता है कि ज़िंदगी में गलतियां नहीं होती, सबक ही सबक होते हैं जब तक आप उन्हें सीख नहीं लेते। तो इसी तरह एक चीज़ हमने की, वो ठीक नहीं हुई, अब हमने अगली दफ़ा के लिए ये लिख दिया कि ये जो सोल्यूशन है ये वैलिड नहीं होगा इस क्लाइंट या इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो एक बड़ा अच्छा लेसन लर्नड आ जाएगा। तो ये एक टेक्निक है कि हम उसको देख लें कि वो लेसन, जो हमारा लेसन लर्नड प्रोसेस है, वो हमारी एक टेक्निक हो सकती है अपने बिजनेस एनालिसिस परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए। उसके बाद मैट्रिसेस एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs, ये हम सेट कर सकते हैं कि हमारे ऐसे पैरामीटर्स जो कि टेंजिबल हों, जो कि विजिबल हों, और हमें भी पता हो कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, और जो हमारे सीनियर्स हैं उनको भी पता हो, जो हमारी टीम्स हैं उनको भी पता हो कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। So these can be used to determine what matrices are appropriate for assessing business analysis performance and how they may be tracked। तो जब उनको पता होगा कि हमारी परफॉर्मेंस इन पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो चेक की जा रही है, तो वो फिर अकॉर्डिंगली उसको अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद जो एक और टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं मैनेजिंग बिजनेस एनालिसिस परफॉर्मेंस, एंड दैट इज़ प्रॉब्लम ट्रैकिंग। So this may be used to track issues that occur during the performance of business analysis for later resolution। हम देखते हैं कि जब हमने एक सोल्यूशन लॉन्च किया जो कि बिजनेस एनालिसिस के थ्रू हुआ था, और अगर उसकी वजह से कोई इशू आ रहा है या वैसे ही कोई एक इशू जर्नल आ रहा है, तो उसको हमने कैसे उसको मैनेज करना है। सो वी विल कीप अ ट्रैक ऑन दैट। ये नहीं है कि आज अगर उस प्रॉब्लम का कोई हल हो गया तो हम उसको छोड़ देंगे और फिर हम उसकी बात नहीं करेंगे। दिस इज नॉट द केस। सो प्रॉब्लम ट्रैकिंग जो है वो हम साथ साथ उसकी मुसलसल करेंगे, और बाद में भी उसको हम देखेंगे कि ये अगर अभी नहीं होता रिजॉल्व, तो बाद में हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो फर्दर हमारी जो टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं वो है प्रोसेस मॉडलिंग। दिस कैन बी यूज टू डिफाइन बिजनेस एनालिसिस प्रोसेसेस एंड अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्रूव दिस प्रोसेसेस टू रिड्यूस प्रॉब्लम्स। अब हम एक चीज़ मॉडल कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमने ये किया और हमारा ये रिजल्ट आया, हमने फिर ये किया और ये रिजल्ट आया। तो अब हमारे पास 4 इवेंट्स हैं और उनके 2 रिजल्ट्स हैं। अब हम देख सकते हैं कि अगर हम ये एक्शन करते हैं तो उसका ये रिजल्ट निकलता है, और अगर ये एक्शन करते हैं तो ये रिजल्ट निकलता है। तो इससे हम एक फ्यूचर के बारे में बड़ा अच्छा फोर्स ही कर सकते हैं कि हमें क्या चीज़ नहीं करनी ताकि हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो ठीक आए। उसके बाद रूट कॉज एनालिसिस है। ये बेसिकली हमारी हेल्प कर सकता है कि क्या अंडरलाइंग कॉज है किसी भी फेलियर की, डिफरेंस की, किसी इशू की, कोई प्रॉब्लम की। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं एक चीज़ की, बहुत सारी कॉजेज हो सकती हैं, लेकिन असल बेसिक वजह क्या है वो हम इस टेक्निक के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद एक बड़ा अच्छा टूल है मैनेजिंग बिजनेस एनालिसिस परफॉर्मेंस के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए, वो है सर्वे और क्वेश्चनेयर। जब हमने काफ़ी बड़े नंबर ऑफ स्टेक होल्डर से कोई फीडबैक लेना हो और हमने उसको एवेल्युएट करना हो, तो वो फिर हम सर्वे और क्वेश्चनर्स यूज़ करते हैं। और ये बेसिकली जनरल टेक्निक्स हैं जो अभी तक हमने बात की, सर्वे, रूट कॉज, प्रोसेस मॉडलिंग, इंटरव्यूज एंड स्टफ लाइक दैट, ये सारी। अब हम एक और चीज़ करेंगे, वेरिएंस एनालिसिस। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएंस एनालिसिस ये चीज़ है कि क्या आपका फिक्स्ड स्टैंडर्ड था और आप उससे कितना ऊपर या कितना नीचे आए हैं, कितना आपने
ज़्यादा काम किया या कितना हमने उससे नीचे काम किया। तो जितना आप उससे ऊपर या नीचे उस बेस लाइन से जाते हैं तो वो आपका वेरिएंस को डिफाइन करता है। अगर ये स्टैंडर्ड था आपका कि जी आपकी ये कॉस्ट होनी चाहिए और आपकी कॉस्ट ऊपर चली गई है तो बेसिकली, और यहाँ जो वेरिएंस है वो कम है, और अगर ज़्यादा चला जाएगा तो ये ज़्यादा वेरिएंस हो जाएगा, और अगर आपका यहाँ रहे कोई प्रोजेक्ट या कोई इनिशिएटिव तो वो लेस वेरिएंस है। सो दिस इज काइंड ऑफ एक वेरिएंस एनालिसिस के जो आपका सेट टारगेट था उससे कितने परसेंट या कितने पॉइंट्स का फर्क है। सो द पर्पस ऑफ दिस टेक्निक इज टू एनालाइज discrepancies between planned and actual performance, determine the magnitude of those discrepancies and recommend corrective and preventive action as required. Variance can be related to planned versus actual estimates, cost, scope, product expectations, or any measures that have been established during the planning process. तो वो कॉस्ट के हवाले से भी हो सकता है, वो टाइम के हवाले से भी हो सकता है, स्कोप के हवाले से भी हो सकता है, एक्सपेक्टेशंस के हवाले से भी हो सकता है, क्वालिटी के भी हो सकते हैं, या फिर जो हमने प्लानिंग के दौरान जो मैट्रिसेस हमने डिफाइन किए थे उनके रेफरेंस से भी हो सकता हूँ। जो स्टेक होल्डर्स हमारे मैनेज बिजनेस एनालिसिस परफॉर्मेंस के अंदर जिनको हमें इन्फॉर्म करना है परफॉर्मेंस के बारे में, उनके अंदर हमारे डोमेन एसएमईज हैं, एंड यूजर्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन एसएमईज हैं, ऑपरेशनल सपोर्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, टेस्टर है और स्पॉन्सर है। ये वो स्टेक होल्डर्स हैं जिनको हमें इन्फॉर्म करना होता है अपने बिजनेस एनालिसिस परफॉर्मेंस के बारे में। जब हम ये सारे जो हमारे जो प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेते हैं इस टास्क के, हमने इनपुट कर लिया, हमने उसके एलिमेंट्स को एप्रीहेंड कर लिया इस टास्क के, और हमने टेक्निक्स अप्लाई कर दी और हमने स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड कर लिया, तो देन वी गेट आउटपुट्स। जिस तरह के पहले डिस्कस हो चुका कि इस टास्क के दो आउटपुट हैं, and one is business analysis performance assessment and business analysis process assets. So business analysis performance assessment, this includes a comparison of planned versus actual performance, understanding the root cause of the variance from the plan, and other information to help understand the level of effort required to complete business analysis work. उसके बाद जो दूसरा है business analysis process assets, when the analysis of the performance of the business analysis work yields less than satisfactory result, it is helpful to review not only the results themselves but also the process that produced those results. This process analysis often results in recommendations for improvement to the business analysis process for this particular initiative or for the future initiatives which will need to become in future. So this is all about the 6 tasks of first knowledge area, that is plan, business analysis, planning and monitoring, and let's have a summary of this lecture. So we were talking about we have taken 2 sessions on business analysis, planning and monitoring, and we do know now that there are 6 tasks for this knowledge area of business analysis, and 3 tasks we had discussed in the previous class, and 3 tasks we have discussed today, and 3 tasks are plan, business analysis, communication. Business analysis communication plan is the output, then plan requirements management process, requirements management plan is the output, manage business analysis performance, and business analysis performance assessment, and business analysis performance assets, these are outputs. हमने हर जो हमारा टास्क था, जो आज हमने 3 टास्क डिस्कस किए हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन की बात की, हमने हर एक के इनपुट्स की बात की, हमने एलिमेंट्स क्या हैं उस पर्टिकुलर टास्क के उनके ऊपर बात की, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हमने कंसिडर करना है, जिनको हमने डिस्कस करना है, जिनको हमने एक्सप्लोर करना है,
और फिर कौन कौन सी टेक्निक्स हमने यूज़ करनी है। ऑब्वियसली हमने सारी की सारी टेक्निक्स वहाँ यूज़ नहीं करनी होती, उनमें से कुछ जो हैं 1 2 3 4 या कम्बिनेशन के साथ या कुछ चूज़ करके हमने वो जो है वो उनको हमने एम्प्लॉय करना होता है। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, उनका क्या रोल है उस टास्क के अंदर, कब किसको इन्फॉर्म करना है, कब किससे अप्रूवल लेनी है, कब किसको रिव्यू के लिए भेजना है। और फिर हमने देखा कि आउटपुट्स जनरेट होते हैं और हमने इनकी इनपुट्स आउटपुट डायग्राम्स भी देखी और हमने ये भी बात की कि जो आउटपुट एक टास्क के होते हैं वो दूसरे टास्क के इनपुट हो सकते हैं। So in this fashion we have concluded our today's lecture. I say good luck, thank you and Allah Hafiz.